بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چینل پر ایک بار پھر آپ کو ویلکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ موک ٹیسٹ نمبر 10 ہے، اور یہ ویڈیو لیکچر اردو اور اس کے علاوہ سینئر ایلیمنٹری ٹیچر اردو ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن 2026۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں جو سوالات موجود ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال کچھ یوں ہے کہ غالب کے اردو کلام کی شرح گفتہ غالب کے نام سے کس نے کی؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حمید اللہ شاہ ہاشمی۔ دوسرا سوال ہے کہ رموز غالب کے کلام کی شرح ہے، بتائیے کس نے لکھی؟ یہ لکھی تھی جی احسان دانش صاحب نے۔ تیسرا سوال ہے کہ شاہد الوری نے اپنی کس کتاب میں اقبال اور غالب کے 50-50 مصروں پر تضمین کی؟ درست جواب اس کا ہے 50-50، یعنی بے آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا سوال غالب کے خطوط کی پیروڈی پر مبنی کتاب غالب کے نئے خطوط کے مصنف کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا انور سدید۔ اسی طرح پانچواں سوال ہے کہ غالب کے نئے خطوط کتاب میں کل کتنے خطوط جو ہیں وہ شامل ہیں؟ جواب اس کا ہوگا 15۔ چھٹا سوال دیکھیے گا کہ غالب کے خطوط کی پیروڈی مکاتیب خضر کے عنوان سے کس نے کی؟ جواب ہے اس کا خالد اختر۔ ساتواں سوال ہے کہ غالب پر مزاحیہ کتاب غالب کی آبرو کے خالق کون ہیں؟ اس کتاب کو ترتیب دیا تھا اعتبار ساجد نے۔ آٹھواں سوال ہے کہ مرزا غالب کی سوانے پر لکھا جانے والا ناول مرزا نوشا کس کا ہے؟ یہ ناول لکھا تھا عشرت رحمانی نے۔ نواں سوال دیکھیے گا کہ غالب کے اشعار پر لکھے گئے ڈراموں کی کتاب غالب کے ڈرامے کس کی ہے؟ جواب ہوگا اس کا شوکت تھانوی۔ مزید سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر آگے ہمارے پاس ہے 10۔ مزاح پر مبنی کتاب غالب رائل پارک میں کس کی ہے؟ درست جواب ہے اس کا اے حمید۔ 11واں سوال دیکھیں کہ لفظ امت کی جمع کیا ہوگی؟ امت کی جمع جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی بے آپشن اس کا درست ہے۔ 12واں سوال ہے کہ افغانستان کے سفر کے دوران میں اقبال کے ساتھ کون تھے؟ نیچے 4 آپشن ہیں اور ان 4 آپشن میں جو درست جواب ہے وہ ہے سید سلیمان ندوی۔ 13واں سوال ہے کہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات جو ہے وہ 1930 میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 14 ہے کہ اقبال نے اسرار خودی اور رموز بے خودی کو یکجا کر کے اسرار و رموز کے عنوان سے کتاب کب شائع کروائی؟ یہ کتاب انہوں نے 1923 میں جو ہے وہ شائع کروائی تھی۔ 15واں سوال ہے اقبال پر لکھی جانے والی کتاب میں لالا و فام کے خالق کون ہیں؟ جواب اس کا ہوگا ڈاکٹر جاوید اقبال، جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ 16واں سوال ہے کہ اقبال پیمبر انقلاب کتاب کے لکھنے والے کا نام بتائیں۔ یہ کتاب لکھی شورش کاشمیری نے۔ 17واں سوال ہے کہ اقبال کی 13 نظمیں کتاب کس نے ترتیب دی؟ اس کتاب کو ترتیب دیا تھا اسلوب احمد انصاری نے۔ اسی طرح سوال نمبر 18 ہے کہ درج ذیل میں سے اقبال پر لکھی جانے والی ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب کون سی ہے؟ جواب اس کا ہوگا اقبال ممدوح عالم، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیے گا کہ اقبال درون خانہ کتاب کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب اس کا ہے خالد نذیر صوفی۔ سوال نمبر 20 ہے کہ لفظ وام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وام کا مطلب ہوتا ہے قرض، یعنی الف آپشن جو ہے وہ درست ہوگا۔ 21واں سوال کہ لفظ واماندگی کا مطلب بتائیں۔ واماندگی کا مطلب ہوتا ہے بے بسی۔ سوال نمبر 22 ہے ہرزہ سرا کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ باتیں کرنے والا۔
23वां सवाल, लफ्ज़ कुर्सी का ताल्लुक़ किस ज़बान से है? जवाब होगा अरबी। और सवाल नंबर 24 मुलाहिज़ा कीजिए कि उर्दू ज़ुबान में मुरक्कबात की तादाद सबसे ज़्यादा किन दो ज़बानों से आई? दुरुस्त जवाब इसका होगा अरबी और फ़ारसी, यानी जीम ऑप्शन इसका जो है वो दुरुस्त है। 25वां सवाल देखें कि फ़िल फ़ौर और दारुल हुकूमत इन मुरक्कबात का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? जवाब इसका होगा अरबी। 26वां सवाल मुलाहिज़ा कीजिए कि दुकानदार मुरक्कब किन दो ज़ुबानों से मिलकर बना है? जवाब इसका होगा अरबी और फ़ारसी। 27वां सवाल, सड़क लफ्ज़ का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है? जवाब इसका होगा हिंदी ज़ुबान से। सवाल नंबर 28 देखिएगा। सवाल नंबर 28 कुछ यूँ है कि फ़ेल की अक़साम बलिहाज मानी कितनी हैं? जवाब होगा इसका 3। सवाल नंबर 29 देखें कि असलम ने सांप मार डाला। इस जुमले में इमदादी फ़ेल की पहचान करें। इस जुमले में जो इमदादी फ़ेल होगा वो होगा डाला, यानी जीम ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। अगला सवाल है कि अब, जब, कब और तब ये अल्फाज किस ज़बान से माखूज़ हैं? दुरुस्त जवाब इसका होगा संस्कृत। सवाल नंबर 31 है कि मौलवी अब्दुल हक ने हरूफ की कितनी तादाद बताई है? जवाब इसका होगा बे ऑप्शन, यानी उन्होंने हरूफ को 4 ग्रोह में जो है वो तकसीम किया है। 32वां सवाल है कि पहले हमें फ़न पारे के महासिन तलाश करने चाहिए, किसकी राय है? नीचे 4 नक्काद जो हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। जवाब इसका होगा एस.टी. कोलरिज। 33वां सवाल, मौजू की ताबीर व तशरीह करती है। नीचे 4 ऑप्शन हैं और मौजू की ताबीर व तशरीह जो है वो इस्तक़राई तनकीद में की जाती है। दुरुस्त जवाब होगा इस्तक़राई तनकीद। सवाल नंबर 34 देखिएगा। सवाल नंबर 34 कुछ यूँ है कि मशरकी अदब कतई गैर अहम और बेवुक़्त है, ये किसका कौल है? जवाब होगा कलीमुद्दीन अहमद। 35वां सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक हाली की लकीर पर चलते रहे, किसके अल्फाज हैं? ये अल्फाज हैं जी कलीमुद्दीन अहमद के। 36वां सवाल कि हसन अस्करी की किताब सितारा या बादबान में कितने तनकीदी मज़ामीन शामिल हैं? जवाब इसका होगा 28। मज़ीद सवाल देखिएगा कि सवाल नंबर 37 है हमारे पास, और ये भी एक स्टेटमेंट है कि अदब बनफ्सा एक नए तवाज़ुन की तलाश करता है, किसका कौल है? ये कौल है जी अलिफ ऑप्शन, यानी हसन अस्करी का। सवाल नंबर 38, मोहम्मद हसन अस्करी मरहूम उर्दू अदब में कुतुबी सितारा थे, ये अल्फाज किसके हैं? दुरुस्त जवाब इसका होगा सिराज मुनीर। सवाल नंबर 39 है कि किस शख्सियत की तनकीद में इंसानी दिमाग के अमल और रद्द अमल को अहमियत हासिल है? इसका जो सही जवाब है वो है हसन अस्करी। सवाल नंबर 40 है कि रमूज़ तनकीद किताब के खालिक का नाम बताएं। ये किताब लिखी है जी तनवीर बुखारी ने। इसी तरह सवाल नंबर जो हमारे पास अगला है वो है सवाल नंबर 41, अदब और नज़रिया किसकी किताब है? ये किताब है आल अहमद सरूर की, अलिफ ऑप्शन दुरुस्त हुआ। सवाल नंबर 42 देखिएगा। अगर ये किताब मुकदमा शेर व शायरी पढ़ी जाती है और पढ़ी जाएगी तो अपनी बेमिसल नसर के लिए, तनकीदी असूलों और नज़रियों के लिए नहीं, किस नक्काद ने कहा? जवाब इसका होगा कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 43 है कि मारूफ मज़ाह निगार सद्दीक़ सालिक कहाँ पैदा हुए? नीचे 4 ऑप्शन हैं, उनकी जो जाए पैदाइश है वो है खारियाँ। सवाल नंबर 44 देखें कि हमा यारा दोज़ख मज़ाह पर मबनी किताब किसकी है? जवाब इसका होगा सद्दीक़ सालिक। इसी तरह सवाल नंबर 45 है कि सैल्यूट के उन्वान से किस मज़ाह निगार ने अपनी आप बीती लिखी? जवाब इसका होगा जीम ऑप्शन, यानी सद्दीक़ सालिक। मज़ीद सवाल देखिए। सवाल नंबर हमारे पास 46 जो है वो कुछ यूँ है कि आंगन टेढ़ा के उन्वान से किस मज़ाह निगार ने ड्रामा लिखा?
जवाब इसका होगा अनवर मकसूद। सवाल नंबर 47, खंदा पेश आनियाँ किस मज़ाह निगार की किताब है? इसका जो जवाब होगा वो होगा डॉक्टर यूनुस भट्ट। सवाल नंबर 48 है कि मज़ाहिया शायरी पर मबनी किताब कुए ज़राफ़त किसकी है? ये किताब है जी इनामुल हक जावेद साहब की। सवाल नंबर 49 है कि मज़ाहिया नज़्म पुरानी मोटर किसकी तख्लीक करदा है? जवाब इसका होगा ज़मीर जाफरी। सवाल नंबर 50 देखें कि मारूफ मज़ाह निगार दिलावर फिगार का असल नाम बताएं। इनका असल नाम जो है वो है दिलावर हुसैन। सवाल नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। मज़ाहिया किताब शामत आमाल के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब इसका जो दुरुस्त है वो है दिलावर फिगार। सवाल नंबर 52 देखिएगा कि किस माहिर लिसानियात ने उर्दू को खड़ी बोली का अदबी रूप करार दिया? जवाब इसका होगा ग्रेरसन, यानी अलिफ ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 53 है कि अदबी और लिसानी मज़ामीन पर मबनी किताब परख और पहचान किसकी है? जवाब होगा ज्ञान चंद जैन। सवाल नंबर 54 देखें कि किस माहिर लिसानियात ने सबसे पहले संस्कृत ज़बान के कवायद तरतीब दिए? जवाब इसका होगा पाणिनी, यानी बे ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 55 मुलाहिज़ा कीजिए, और सवाल नंबर 55 कुछ यूँ है कि कौन से माहिर लिसानियात लाहौर को उर्दू की जाए पैदाइश बताते हैं? नीचे 4 ऑप्शन में से जो दुरुस्त जवाब है वो है ग्राहम बेली। सवाल नंबर 56 है कि उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया झैल में से किस तज़किरे में मिलता है? जवाब जो दुरुस्त है वो है एजाज़ सुखन। सवाल नंबर 57 देखें कि पंडित ब्रिजमोहन ने उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई? जवाब इसका होगा 47, यानी 47 उन्होंने बताई थी, बे ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 58 है कि उर्दू ज़ुबान में शामिल अरबी और फ़ारसी हमसौत हरूफ को किस ने ज़िंदा लाशें करार दिया? दुरुस्त जवाब है मसूद हुसैन ख़ान। और अगला सवाल है कि लिसानियात की रूह से छोटी तहरीरी इकाई कौन सी होती है? नीचे 4 ऑप्शन हैं। छोटी तहरीरी इकाई जो होती है वो होती है हर्फ, यानी अलिफ ऑप्शन दुरुस्त हुआ। सवाल नंबर 60 देखिएगा कि लिसानियाती इस्तिलाह में छोटी तहरीरी इकाई को क्या कहा जाता है? जवाब इसका होगा जीम ऑप्शन, यानी तरसीमिया। सवाल नंबर 61 है कि झैल में से कौन से 4 हरूफ अरबी ज़ुबान के नहीं हैं? और नीचे जब हम 4 ऑप्शन देखते हैं तो इनमें से जो अलिफ ऑप्शन है वो दुरुस्त होगा, यानी पे, चे, योएं और गाफ। सवाल नंबर 62 है कि लिसानियाती इस्तिलाह में हर्फ की बदली हुई शक्ल को क्या कहते हैं? जवाब इसका होगा झैली तरसीमिया, यानी बे ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 63 है कि ख़त नस्तालीक के मूजिद का नाम बताएं। जवाब है इसका ख्वाजा मीर अली तब्रेज़ी, यानी बे ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 64 कुछ यूँ है कि हिंदुस्तान में ख़त नस्तालीक का रिवाज किस सदी में हुआ? जवाब इसका होगा 16वीं सदी में। सवाल नंबर 65 देखें कि गालिब की माहाना पेंशन कितनी थी? दुरुस्त जवाब है 62.5 रुपये माहाना, यानी बे ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त है। सवाल नंबर 66 है कि इकबाल की नज़्म शम्मा और शायर में कुल कितने बंद हैं? जवाब होगा इसका 11। 67 नंबर पे सवाल है कि इकबाल की किस नज़्म के अक्सर अशार फ़लस्तीन में लिखे गए? जवाब होगा ज़ौक़ो शौक़। अगला सवाल है कि इकबाल की नज़्म तुलुए इस्लाम किस हैत में लिखी गई है? दुरुस्त जवाब है इसका तरकीब बंद। और सवाल नंबर 69 है कि पीरे तरीक़त से क्या मुराद लिया जाता है? इसका मतलब होता है रूहानी रहनुमा के लिए लफ्ज़ पीरे तरीक़त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आज की वीडियो का आखिरी और सवाल नंबर 70 है कि सिट्टी गुम होना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हवास बाख्ता होना।
تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔